Assalamu alaikum viewers, you're watching special program on disaster management in Pakistan live from Higher Education Television channel, and I'm your host Maham Arif. You can watch this program live on edutv.hec.gov.pk, and you can also follow us on Twitter @edutv_hec. Viewers, as we know, Pakistan is facing very critical situation right now. 80% of Pakistan is affected by floods, and nearly 60% of crops have been damaged. According to the Climate Risk Index 2021, Pakistan ranks 8th for countries most affected by extreme weather events between year 2000 to 2019. For this purpose, we have invited a very honorable guest to our studios, Dr. Ahmad Gul. He's currently the Director of Center of Disaster Management at UMT Lahore, and he's also part of the faculty of UMT. He holds PhD in Disaster Management from Japan, and Gul has more than 12 years of experience in flood modeling, fluvial transport modeling, and space technology applications in disaster management. And Gul has also worked as an expert on DRR, disaster risk reduction, and water-related disaster management, including collaborative projects with national and international organizations. Let's welcome him to the studio. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. Sir, first of all, I would like to ask, what was the reason for selecting this subject as profession? It must be your own choice or area of interest. जी आपका इट्स अ गुड क्वेश्चन. जब मैं सुपार्को में था तो आई वाज वर्किंग देयर एज अ यंग ऑफिसर. उसी टाइम पे 2010 का फ्लड हिट किया, एंड आई वाज रियली इन्वॉल्व्ड इन द फ्लड एज अ वॉलंटियर और इन अ पर्सनल कैपेसिटी. उस टाइम पे मेरा काफ़ी इंटरेस्ट जनरेट हो रहा था, एंड देन देयर वाज दिस अपॉर्चुनिटी जिसके अंदर एक वो यूनेस्को की फंडेड स्कॉलरशिप थी, एंड आई वाज लाइक दिस साउंड्स रियली इंटरेस्टिंग एंड आई रियली वांट टू परस्यू दैट. तो मैंने MS इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट परस्यू किया इन 2011, एंड देन आई केम बैक. आई वर्कड इन द सेम डोमेन फॉर अबाउट 4.5 years. And it was very interesting for me, and then I decided कि अच्छा नहीं, this seems that's the thing I really want to do. Okay. तो फिर PhD के लिए किया. ठीक है. अच्छा, what's the situation of floods in Pakistan right now? Right now जो इस वक्त on ground situation है उसके अंदर most affected areas again remain सिंध के plain areas, जहाँ पे अभी भी पानी recede नहीं हुआ completely. Or it may take some more weeks for that. As we have heard that the saturation point उसका complete हो गया, यानी कि उससे ज़्यादा पानी वैसे भी ज़मीन absorb नहीं कर सकती. बाकी जो पानी है वो कहाँ जाएगा? जो surface के ऊपर पानी है that has to be drained, and it has to be drained through जो हमारा drainage का network है. On the right bank of Indus सबसे ज़्यादा worst situation है, जिसके अंदर जो मंशर लेक है उससे पानी को ड्रेन करना, यानी वही एक नेचुरल रास्ता है. जो हमें समझने की शायद ज़रूरत है. आई मे बी एलैबोरेट ऑन दिस बिट लेटर एज वेल, कि मंशर लेक के ऊपर तकरीबन 100,000 स्क्वायर किलोमीटर्स की कंट्रीब्यूटिंग कैचमेंट है. यानी वो जब वहाँ पे लेक के अंदर पानी अभी हम नज़र आ रहे हैं, वो खाली सिंध के अंदर से जनरेट होके नहीं आया. वो फार ऑफ एरियाज़ हैं बलूचिस्तान के, वहाँ की डिफरेंट कैचमेंट्स हैं, हिल जो बहुत छोटी छोटी हिल्स हैं और उनकी छोटी छोटी हिल टॉरेंट कैचमेंट्स हैं. वहाँ से जब इस दफ़ा बहुत ज़्यादा बारिश हुई, ऑल ऑफ दैट वाटर केम रशिंग डाउन द हिल्स. वो जो हिल्स के अंदर एडजेसेंट जो कम्युनिटीज़ थी उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, बट इट वाज रियली रैपिड. उनको उसने क्विकली पानी ने हिट किया, एंड देन द वाटर रश्ड एंड सेटल्ड डाउन इन द प्लेन एरियाज़. वहाँ पे स्लो होके बस वो, सिंस द ग्रेडियंट of the land is not so steep, so the water is just really slow and it's waiting to be drained out. हमारा drainage infrastructure unfortunately इतना capable नहीं है कि वो उसको drain out कर सके. तो right bank पे तो ये situation है. left bank के ऊपर भी unfortunately वहाँ पे left bank of Indus के ऊपर कोई पहाड़ी इलाके नहीं है. we still have a problem unfortunately कि जो बारिश इतनी ज़्यादा बारिश हुई है उन areas में भी, which was quite extreme rainfall. वो भी पानी जो है sadly अब यानी जिस तरह आपने mention किया कि infiltration rate जो है उसका वो saturate हो चुका है. there is no more place for the water to go below. it has to be drained. तो left bank पे भी ये सूरत हाल है, even though कि वहाँ पे कोई flash flood type situation नहीं है. right bank पे it's a mix of rainfall related floods,
hill torrent related floods. इसके लिए काम हो रहा है अभी इस पे? इस पे काम हो रहा है एक्चुअली. नहीं इस पे दे आर ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ वर्क. आई मीन जिन लोगों को मैं जानता हूँ जो फील्ड में इस वक्त काम कर रहे हैं, उनका दिन रात जो है वो इस वक्त फील्ड पे लग रहा है. देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ दैट वी कुड हैव डन बिफोर, बट अभी यानी इसको कहते हैं हाइंडसाइट इज़ 2020, राइट. तो इस वक्त हम बहुत कुछ कह सकते हैं कि ये होना चाहिए था. इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू सी कि अब आके इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है. That's And my what next do we question. do? What are the Yeah. challenges of floods in Pakistan? यानी पाकिस्तान को कौन से challenges face करने पड़ रहे हैं अभी इस वक्त? बहुत ज़्यादा है, especially when you look at it from the perspective that it's going to get worse. This year we saw in many places कि rainfall के जो records हैं they were broken, and they were broken because climate is in fact changing, और उसकी वजह से बहुत सारे ऐसे areas हैं जिन्होंने हमारी जो recorded history है, जब से हमने rainfall के को रिकॉर्ड करना शुरू किया उस वक्त से अभी तक के वो एक्सट्रीम रेनफॉल थी, सबसे अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल थी. So it means it is very likely that this is going to continue in this manner, and we are going to keep on facing extreme rainfall like that. तो एक सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि एक तो रूटीन क्लाइमेट के अंदर भी floods are part of reality. Yes. And in the future as well, sadly because of climate change, we are going to expect So more and climate more change is a extreme. global issue. It's a global but, issue. How Pakistan is tackling that issue? That's the major point. It's a global reality in fact. Yes. It's a reality that we हमने sadly उसको इस तरह fully realize नहीं किया, और अब हमारे जो national discourse है उसमें ये चीज़ें आना शुरू हुई हैं कि climate is changing and we need to do something about it. It has been changing for a long time. Several Yes. decades हो गई हैं. उसके ऊपर international community के अंदर भी बहुत ज़्यादा mobilization हो चुकी हुई है इसके ऊपर, and it's sadly पाकिस्तान में इतना mature वो नहीं है इसके ऊपर. हमारी understanding of the issue and our strategy to deal with its impacts, it's still a bit premature. I've heard around 28 these kind of floods have affected Pakistan in these 75 years. It is sadly कि हम एक जब disaster आता है तो हम once the response phase is over, we kind of forget about Come it, to normal. and then we move on to the next one, and then we start thinking about that. So एक flood to flood या disaster to disaster हमारी एक thinking बन गई है, Yes. and we are not really thinking on more long term. What are the potential long-term consequences? Why does Pakistan suffer the most disasters? Why does Pakistan suffer the most? It's really interesting. Some part of it is natural. It's part of the geography. We are highly dependent on water. We are an agriculture-based economy. Yes. We are really dependent on the availability of water. If it is too less, then we suffer. If it is too much, then we also suffer because of that. Yes. तो एक तो कुछ और हमारी रीजन कुछ इस तरह की है कि of course we have a lot of diversity in our terrain as well. हमारे पास हिमालयस हैं, Yes, we जहाँ have पे rivers. glaciers हैं, then we are dependent on the snow melt as well. Yes. So उसकी पानी की availability in the right amount, उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा dependent हैं, और हमारा बहुत ज़्यादा जो infrastructure है related to water, that has been designed in a way कि वो just the right amount of water होगा तो वो उस तरह चलता है. When it becomes too That's what less, we talk about the dams, yes. and we have, I don't know what's going on, but dams बन रहे थे, नहीं बने, कुछ ऐसी अजीब सी situation थी. अच्छा, डैम्स वाली डिस्कोर्स भी जब भी हम फ्लड्स की बात करते हैं तो डैम्स की डिस्कोर्स जो है वो भी डिस्कशन बीच में आ जाती है, और वो इसलिए आ जाती है बिकॉज शायद हम लोग वी आर कंडीशनड कि फ्लड्स को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो डैम्स हैं, और फ्लड्स इसलिए आते हैं बिकॉज हमने डैम नहीं बनाए. ठीक है. सो अनफॉर्चुनेटली दैट्स हाउ. एक बड़ा सर्कुलर सा आर्ग्यूमेंट है कि वो कालाबाग डैम नहीं बनाया आपने तो इस वजह से सैलाब आता है, एंड जब तक वो नहीं बनेगा तो आता रहेगा. हैं जिनको हम नहीं फोकस कर रहे. एग्जैक्टली एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. बिकॉज अब मेरा पर्सपेक्टिव इसके ऊपर ये हो चुका हुआ है कि कालाबाग डैम या इस तरह के लार्ज मेगा डैम्स जो हैं उनको बनाने के लिए यू नीड फाइनेंसिंग, एंड यू नीड द एक्सेप्टेंस कह लें या
all the stakeholders need to agree on that. Yes. So this is a given. यानी जब तक ये नहीं होंगी चीज़ें तो और भी बहुत सारे उसमें impacts है. लेकिन if these things are not there, then you can't really do it. But by all means, if we have the consensus of all the stakeholders, if you have the financing, go for it. ठीक है? Even though उसके environmental impacts आपको सबको पता है कि किस तरह के उसके large dams के impacts हो सकते हैं, लेकिन go for it. But meanwhile, realize there are lots of other things that we can do to adapt to the changing climate, Yes. to make sure कि उसके नुकसानात से हम बच सकें. और we can't just ignore all of that कि जब Yes. तक large dams नहीं बनेंगे तो हम वो नहीं We करेंगे. are totally dependent on the dams, but हमें बाकी चीज़ों को भी जो है वो Exactly. और वो इतनी सारी चीज़ें हैं that we need to do, not just large dams. तो जब मुझे इस चीज़ पे थोड़ा सा annoyance होती है कि we make it all about that, which may or may not happen because of the lack of consensus that Yes. we have in this Yes. country, because of the lack of financing that we have in the country, and it sort of distracts everybody's attention from the so many other real issues, Yes. and which could be done with much less money, Yes. and there's such low hanging fruits, लेकिन हम उसको जाके नहीं grasp करते. Exactly. What's the importance of integrating DRR, disaster risk reduction, in sectoral policies and local plans implementation? अच्छा plans? ये That's your बहुत हाँ area of- I really like this question because it's really important, लेकिन मुझे at the same time लगता है कि this is something that I could talk on for a long time. Okay. बहुत important चीज़ है. सबसे बड़ा problem हमें जो You सब can face कर रहे हैं explain ना, few strategies of DRR if you. अच्छा उसमें अभी जो अनफॉर्चुनेटली चीज़ ये है कि इसमें आपने वर्ड यूज़ किया लोकल लेवल पे. Local. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है क्लाइमेट चेंज का कि क्लाइमेट चेंज इज़ नॉट गोइंग टू जस्ट कॉज फ्लड्स. ठीक है, इसके डिफरेंट इम्पैक्ट्स हैं. ठीक है, और हमारा जो मुल्क है वो इतना डाइवर्स है, उसकी टोपोग्राफी इतनी वेरी करती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस कि डिफरेंट पीपल लिविंग इन डिफरेंट एरियाज आर गोइंग टू फेस डिफरेंट इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. Yes. And we need to understand कि somebody who is living in Hunza or Chitral or Nowshera Valley or DI Khan or Sialkot or Rajanpur or Nasirabad in Balochistan or Lasbela or Karachi or Badin, all of these people are going to face very different consequences, very Yes. different impacts of climate change. और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि उन कम्युनिटीज़ की वो किस किस्म के हैज़र्ड्स फेस कर रहे हैं, वो किस किस्म के इम्पैक्ट्स फेस करेंगे, और उन कम्युनिटीज़ की वनरेबिलिटीज़ क्या हैं, और हाउ कैन वी एम्पावर देम, हाउ कैन वी वर्क विद देम टू डील विद द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज. उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, सम थिंग्स कैन बी easy as making sure कि हर बच्चा जो है वहाँ पे ही अंडरस्टैंड्स कि क्लाइमेट चेंज क्या चीज़ है, उसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, और उसकी कम्युनिटी में यानी अवेयरनेस की, सिंपल अवेयरनेस की बात है, एजुकेशन की बात है. इट्स ऑल्सो एज सिंपल एज एड्रेसिंग पॉवर्टी इन दोज एरियाज, बिकॉज poor people are disproportionately more impacted by disasters and impacts of climate All change. depends on the research कि जब तक हम उस एरिया पे रिसर्च नहीं करेंगे कि वहाँ हाँ, पे क्या and that situation research needs to happen at a local level. Yes. हम ये नहीं कह सकते कि मैं Overall खाली नहीं कर पाकिस्तान सकते. के climate change के impacts को study कर रहा हूँ, and it can't be a study which is at a country level. It has to be very local because specific. अभी इस दफ़ा भी मुझे मेरे स्टूडेंट्स उन्होंने ऑलमोस्ट मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि सर आप जब भी किसी जगह पे बात करते हैं ना तो आप सबसे पहले डेब्री फ्लो की बात करते हैं. वो इसलिए क्योंकि मुझे बहुत अलार्मिंग लगता है कि इस दफ़ा हुंजा और डिफरेंट हमारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे वी सॉ एट लीस्ट अ डजन वीडियोज़ जिसके अंदर एक सैलाब का रेला आ रहा है और उसमें खाली पानी नहीं है. Mud. It is mud and large rocks. ठीक है, large rocks like 2 meters Yes. big rocks. ठीक है, they're really heavy and it's flowing down the mountain slopes and वो bridges तोड़ रहा है, communities को affect कर रहा है, and almost nobody in Pakistan understands कि वो क्या चीज़ है. Okay. हम उसको समझ ही नहीं सकते तो हम उसको address कैसे करेंगे. So we don't understand कि उन communities के लिए that is what climate change impacts look like. Yes. ठीक है, and नसीराबाद में जो सिचुएशन है बलूचिस्तान में दैट्स वेरी डिफरेंट, लसबेला में वेरी डिफरेंट है, और DI खान में बहुत डिफरेंट है, मियाँ वाली में बहुत डिफरेंट होगी. सो
completely different impacts in different काम areas. हो रहा है, यानी कि उन चीज़ों को हम मॉनिटर कर रहे हैं हमारी गवर्नमेंट? I think कुछ हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हाँ हैं जी, जो काम कर रही हैं. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इस पे काम कर रही हैं, लेकिन देयर वेरी लेस वर्क बीइंग डन. दिस हमारी बहुत सारी कम्युनिटीज़ ऐसी हैं which have no idea how climate change is impacting them, and they are just यानी वहाँ पे unfortunately सिर्फ वही एक है कि something impacts them and then they're like, oh हमारा इतना नुकसान हो गया, and और then फिर वो उसकी there's compensation, at the maximum it's just somebody Damage from the repair government, करने हाँ लगे. आप उनको 20,000 रुपये दे देंगे, 50,000 रुपये दे देंगे, वो तुम्हारा घर टूट गया. तो with that money and no other additional information or guidance, at best what he could do is somehow repair his mud house, या वो उसको थोड़ा सा रिपेयर कर लेगा, रिकन्स्ट्रक्शन में थोड़ा सा उसको अफेक्ट कर लेगा. ही डजंट हैव एन आइडिया कि जहाँ पे उसका घर बना हुआ है वो पानी के बिल्कुल रास्ते में, तो शायद वो से हाँ किस तरह से वो करेगा. या फिर उसको ये पता चल जाए कि जिस इलाके में वो रहता है वो जनरली वहाँ पे सैलाब आते रहेंगे, तो दिस इज़ हाउ ही नीड्स टू कंस्ट्रक्ट हिज हाउस. जिस तरह जब हम झंग के हम एक एरिया में गए जो कि एक साइड पे उसके चनाब था और एक साइड पे रावी, सॉरी एक साइड पे झेलम था, एक साइड पे चनाब था, और सेंटर में वहाँ पे घर थे. इन माई वेरी नाइव परस्पेक्टिव, मैं और मेरे कॉलीग हैं डॉक्टर मैं, हम वहाँ पे गए तो वी वर थिंकिंग कि वहाँ पे बहुत लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा कि किस तरह से सैलाब से बच सकते हैं. तो वील सी द कंडीशन एंड वी कैन मे बी टॉक टू अ फ्यू पीपल ओवर देयर, एंड वी वर सरप्राइज्ड कि हर घर 4 से 5 फुट ऊपर बना हुआ है. और नॉट जस्ट द स्ट्रक्चर इटसेल्फ, बल्कि उनका जो सहन है वो भी इतना है ताकि उनके मवेशी जो हैं वो भी वहाँ पे आके बच जाए. एंड दिस इज़ व्हाट वी नीड टू मेक श्योर कि जितनी भी हमारी ऐसी कम्युनिटीज़ जहाँ पे सैलाब फ्रीक्वेंटली आते हैं, जो कि अब हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस तरह होंगे, तो दे टेक दी सिंपल मेजर्स कि उन तक उनका नुकसान कम से कम हो. जिस तरह बांग्लादेश के अंदर जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे साइक्लोन्स बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, तो दे हैव लर्नड हाउ टू मेक देमसेल्व्स मोर रेजिलिएंट. एंड रेजिलियंस इज़ अ बिग वेरी लोडेड वर्ड. तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. गवर्नमेंट ने उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया है, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल है इसमें. उन्होंने उनके शेल्टर्स बनाए हैं वहाँ पे, और वो शेल्टर्स इस तरह के हैं कि नीचे के जो 1 या 2 फ्लोर्स हैं दे आर एम्प्टी, और उसके ऊपर जो जगह है आमतौर पे जब कोई ऐसी आफत नहीं आती तो वो एज अ स्कूल इस्तेमाल हो रहा है या एज अ कम्युनिटी सेंटर इस्तेमाल हो रहा है. लेकिन जब भी कोई साइक्लोन आता है या सैलाब आता है तो पीपल टेक शेल्टर ओवर देयर एंड दे नो कि दे विल बी सेफ. लाइफ इससे सेफ हो सकती है. सबसे पहले कुछ स्ट्रेटजीज जो हैं आप बता सकते हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में, किस किस्म की रिस्क रिडक्शन के अंदर इस वक्त की जो सूरत हाल है उसमें देयर इज, वैसे रिसेंटली कोई शेयर कर रहे थे डॉक्टर इमरान, एक सॉर्ट ऑफ चार्टर शेयर कर रहे थे ऑफ व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन एंड हाउ कैन वी अलाइन sort of make a charter in response to this कि हम ये चीज़ें करनी चाहिए. And there were lots of things over there. और मुझे realize हुआ, मैंने कहा यार there are so many things which cost very less money, it's really easy to do and they have a multiplier impact. यानी वो एक ऐसी चीज़ है कि where you spend $1 या ₹1 और उसके आपको कई गुना benefits होंगे, and not just direct benefits, indirect benefits भी बहुत ज़्यादा होंगे. Benefits in long term. In the long run. तो एक चीज़ मैंने उसमें भी हाईलाइट की, वो ये थी कि इट्स रियली अनफॉर्चुनेट कि जिस तरह अभी हम मंचर लेक के ऊपर हम देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है, एंड डिसीजन मेकर्स जो प्रोविंशियल लेवल के डिसीजन मेकर्स हैं वहाँ पे पीएम साहब भी गए, सीएम साहब भी पहुँचे हुए हैं, इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं, एंड एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट कि इसको पानी को ड्रेन आउट कैसे करना है. द बिगेस्ट क्वेश्चन वाज दे डिडंट नो हाउ मच वाटर देयर इज़. They have no idea कि पानी पीछे से कितना आ रहा है. It's essentially because हमने इन्वेस्ट ही नहीं किया मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर. We do not have even rainfall gauge stations. ठीक है, they cost hardly anything. They're really really cheap, और आजकल बहुत ही dirt cheap हो गए हैं. And we don't have them in those areas, क्योंकि जिन एरियाज़ में ये बारिशें हुई हैं बलूचिस्तान के हिल टोरेंट के एरियाज़, वहाँ पे हमारे पास उनकी डेंसिटी ही नहीं है, वहाँ पे मेजरमेंट का निज़ाम ही नहीं है. सो वी दोज कम्युनिटीज़ जो कि
उन फ्लैश फ्लड से अफेक्ट हो रही हैं, उन्हें भी नहीं पता होता कि हमारे पास कितना पानी आएगा और कितनी जल्दी आएगा. सो ऑफ कोर्स इट एक्ट्स लाइक एन अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दोज कम्युनिटीज़. एंड इन एडिशन टू दैट, जब वो पानी डाउनस्ट्रीम में आएगा तो जो वहाँ के फ्लड मैनेजर्स हैं, वहाँ के जो इदारे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी नहीं पता होता कि हमारे पास पानी कितना आएगा. दिस इज़ वन ऑफ दोज वेरी बेसिक थिंग्स जिसके ऊपर मुझे एटलीस्ट बात करते हुए तो 10 साल से ज़्यादा हो गए. एंड आई एम श्योर कि मेरे से सीनियर्स जो होंगे इस फील्ड के, दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस फॉर सेवरल डेकेड्स. वी स्टिल हैवंट डन एनीथिंग अबाउट देम. इसका सॉल्यूशन अभी तक जैसे कहते हैं ना, The solution is there. It's about, यानी we know what needs to be done. We don't do it. वो उसके कुछ institutional hurdles होंगे. ठीक है. I'm sure if I talk to somebody in PMD or WAPDA, they would say कि ओ सर बड़ा मसला है जी ये है. लेकिन it's a solved problem. ये पता है कि मसला है. हाँ, it's a solved problem in the sense कि हमें पता है कि दुनिया में लोग इसके लिए क्या करते हैं. जी. But we don't do it. So why we are not following others? Yeah, exactly. And it's one of those things जो इससे इतनी सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं. अगर हमें पता हो कि एग्जैक्टली कितनी बारिश है और उसके लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड से हम फ्लड रिस्क मैपिंग कर सकते हैं, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर डिज़ाइन कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज़ हाउ मच वाटर कम्स इन. एंड लॉट्स ऑफ डैम्स गॉट डिस्ट्रॉयड दिस ईयर. You know, around 10 dams got destroyed this year in Balochistan alone. Process of construction or? नहीं, a lot of the reasons people say that there was a lot of corruption, materials के अंदर इस तरह की खुर्द-बुर्द हुई है, उसकी वजह से वो सही तरह नहीं बने. और उसमें एक फैक्टर जो एटलीस्ट मैं पॉइंट आउट कर सकता हूँ वो ये है कि बलूचिस्तान के अंदर हमारी गेज डेंसिटी बहुत कम है. सो वी डोंट नो कि यहाँ पे आमतौर पे कितनी बारिश होती है. तो जब वो हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो जब आप कोई चीज़ डिज़ाइन करेंगे तो यू डोंट नो कि मैंने उसको किन पैरामीटर्स पे डिज़ाइन करना है, या उसका डिज़ाइन डिस्चार्ज कितना होगा, या उसकी स्पिलवे का क्या डिज़ाइन होगा. सो व्हेन देयर इज़ गोइंग टू बी एन एक्सट्रीम इवेंट, तो और स्पिलवे आपकी बहुत छोटी है, तो इट इज़ गोइंग टू गेट डिस्ट्रॉयड. एंड दैट्स इट इज़ रियली डेवास्टेटिंग फॉर द कम्युनिटीज़, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये डैम हमें बचाएगा, एंड एट द एंड वो उसके लिए एक बहुत बड़ी आफत बन जाता है. तो दैट्स वन ऑफ दोज थिंग्स विच रियली बॉगल्स माई माइंड कि ये हम अभी तक क्यों नहीं कर रहे और इसको हमने क्यों नहीं एड्रेस किया. अच्छा, you have experience in flood modeling and fluvial transport modeling. What is this? अच्छा, fluvial transport modeling is something which I really dived into during my research in my PhD. इसके अंदर हमारा मकसद ये होता है कि हमें ये पता हो कि रिवर जो है वो एक स्टैटिक चीज़ नहीं है. ठीक है. रिवर जो है वो एक जिंदा चीज़ है. It's moving. Exactly, it's moving. It's very dynamic. तो जो डायनामिक पार्ट है वो इसलिए है क्योंकि रिवर के अंदर पानी खाली नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा सेडिमेंट भी होता है. तो वो सेडिमेंट जो है वो कुछ जगहों पे जैसे जैसे वो फ्लो करता है, वो कुछ जगहों पे डिपॉजिट होता है, कुछ जगहों से इरोड करता है, और दैट एसेंशियली चेंजेस द कोर्स ऑफ द रिवर. जब हमारी डायरेक्शन भी वो ऑटोमेटिकली एग्जैक्टली, और वो रिवर्स हमारी स्टैटिक नहीं रहती, तो उसके बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं. यानी कई जगहों पे वो फील्ड में लोग कह रहे होते हैं जी हमारे पास दरिया का कटाव हो रहा है. कटाव हो रहा है उसका मतलब है जो कटाव है दैट्स एसेंशियली देयर एग्रीकल्चर लैंड बीइंग इरोडेड अवे. और इसके और भी बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, हमारे स्ट्रक्चर्स वगैरह के ऊपर बड़े इम्पैक्ट्स हैं, कैनाल इरिगेशन सिस्टम के ऊपर इसके इम्पैक्ट्स हैं. तो दैट वाज वन ऑफ माय topics, yani that was probably the key topic in my PhD. And space technology application. Acha, space technology application. Acha, space technology application is rather easier to understand. वो इसलिए क्योंकि जितने भी disasters हैं, all of them have an impact in space and time. यानी हम उसको एक नक्शे पे प्लॉट कर सकते हैं कि these are the areas, this is what's happening in this area. So whenever you can present something on a map, so that's spatial information, right? Like you are watching from the space. जी, watching from the space. और आप उसको अगर उसको represent कर सकते हैं, तो उसमें जिस तरह भी इस वक्त सूरत हाल बन रही है सिंध के अंदर, it's on a daily basis the flood is moving from one place to the other. ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह डाउनस्ट्रीम मूव करता जा रहा है. तो उसको हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें तो सिर्फ एक दूर तक पानी ही नज़र आता है. तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ऑल वी कैन सी इज़ वाटर. वी डोंट अंडरस्टैंड कि वो कहाँ पे कितना है. यानी
हम अपने जब इंसान अपने ग्राउंड पे खड़ा होकर जब अपने पर्सपेक्टिव से देखता है जिसे हम तो उसको निगाह तक देखना कहते हैं। एग्जैक्टली हद निगाह तक तो आपको पानी नजर आएगा। बिल्कुल। और एट बेस्ट व्हाट यू कुड डू इज यू कैन गो ऑन अ हेली, और हेली के ऊपर आपको 20 किलोमीटर या 15-20 किलोमीटर तक आपको दूर नजर आएगा। पर यूजिंग अ सैटेलाइट यू कुड सी के यू नो इन एंटायर कंट्री क्या सूरत हाल है, पूरे सिंध के अंदर क्या सूरत हाल है, ऑन अ डिस्ट्रिक्ट लेवल बहुत डिटेल्ड आप उसको देख सकते हैं, एंड यू कैन हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिगर पिक्चर, which is really important when we are dealing with situations like floods, even earthquakes, drought. तो इन तमाम चीज़ों के जो impacts हैं वो आप काफ़ी हद तक space से monitor कर सकते हैं। तो बहुत इसमें I got trained into it because of my earlier affiliation with Suparco, और उसमें मेरे बहुत अच्छे colleagues भी हैं जो इस वक्त इसके ऊपर research कर रहे हैं, इस पे काम कर रहे हैं। So there is good work being done. Okay, अच्छा, मीडिया का रोल हर चीज़ में बहुत इम्पोर्टेंट है जैसा कि आप जानते हैं। Absolutely. तो ज़रूरी नहीं है कि उस वाफत आई भी है तो तभी मीडिया एक्टिव हो, उसको पहले भी और बाद में भी एक्टिव होना ज़रूरी है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? अच्छा, मीडिया हैज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक तो जिस तरह अभी हमने इसका पॉजिटिव रोल देखा है इन द आफ्टरमैथ ऑफ व्हाट्स बीन हैपनिंग अक्रॉस द कंट्री, वी different journalists have been going in the field, yes, and they have been showing the world कि किस तरह से इन floods ने impact किया उन communities को, और उनकी क्या challenges हैं, how are those people suffering, yes. तो वो बहुत important चीज़ है। It has shown the world how Pakistan is being impacted by floods. At the same time, मुझे इसमें मतलब कोई शक नहीं कि media has a really important role, but this role has to be beyond this response phase of the disaster management. हमें make sure करना है कि sadly, it's a reality that this is going to die down in the news cycle. Yes. We have to make sure that the real issues do persist and they are being highlighted in the news. And the media does highlight the plight of those people, because sadly अभी भी कुछ news cycle से ये phase out होती जा रही है चीज़. And sadly in this whole episode, other issues, other political issues were being highlighted while 33 million people were impacted by floods. So we have to make sure कि खाली humanitarian crisis और उसका जो response है वही news bites में ना आए, जो recovery process है और उसके अंदर उसको ठीक तरीके से करना, उसकी भी इतनी ही importance हो, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे, इस वक्त एक बहुत बड़ा क्राइसिस हमें नज़र आ रहा है, people are suffering but they will suffer again if you don't do it right. तो हमारा जो recovery process है that needs to make sure कि we need to make sure it's done correctly, it's done the right way, it's वो जो बड़ा वो build back better का phenomena we have to make sure it's done like that. Those people should not be living in those vulnerable conditions again, because if they are, they will be impacted again. तो that's a huge focus. और उसके अलावा बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिसको हम यानी they are very easy things to do but we still haven't gone about doing them, या हमने उसको अपने डेवलपमेंट एजेंडा के अंदर प्रायोरिटाइज नहीं किया, उसके अंदर भी मीडिया का रोल हो सकता है in highlighting, making sure that this is a priority, a political priority for us. It's all about priorities. It's all about priorities. So what do we prioritize? Okay. Thank you so much sir for coming to the show. बहुत ही आपने डिटेल्ड चीज़ें बताई कि फ्लड किस तरह से इफेक्ट कर रहा है पाकिस्तान को, और हमें फ्यूचर में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें प्लानिंग पहले करनी है, यानी जब डैमेज हो जाती है एक चीज़ फिर हम उसकी रिकवरी में लग जाते हैं उस प्रोसेस में, लेकिन बेसिकली आपको पहले ये चीज़ देखनी है कि ये हो क्यों रहा है और उस पर हमें किस तरह से हम काम कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो. दैट्स ऑल फॉर नाउ. टिल देन नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ. अल्लाह हाफिज़.